66. You know that I have explained you about this chapter in previous videos, previous classes. But today's revision class, so I start reading about the nation. You know that this eminent poem is written by Indian poetess Kamla Das. Kamla Das is one of the greatest poetess of India. She wrote many poems. Among them, My Mother at 66 is one of them. It is the only experience or desire to see the condition of her mother. She expresses her feelings to see the stress condition of her mother, because her mother's age was 66 in that time when she wrote this poem. You know that an old age is the curse of human beings, because feelings of pain and aches feels for the aging parents. A single thread of thought runs throughout the poems. There are some observations of the real world around, but they are connected with the main idea. The whole poem is in a single sentence, punctuated by commas. You know that in the old days, every man and woman suffer much with physical pains and aches. It is known to all that age is not comfortable, but feeling of pains and aches. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me. Those open-mouthed, her face so ashen like that of a corruption, realized with pain that she was as old as she looked, but soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spilling out of their homes, but after the airport security check standing a few yards away, I looked again at her when pale as a late winter's moon, and left that old familiar at my childhood fear. But all I said was, see you soon, Amma. All I did was smile and smile and smile. First of all, it is necessary to know about word meaning and difficult word. Beside yani by side means pass, sameep. Those to sleep lightly yani ungna. Ashen means very pale, bahut peela. Corpse means dead body yani mrit sharir. Realized with pain, very sad yani bahut dukhi. स्प्रिंटिंग यानी रनिंग दौड़ते हुए, स्पिलिंग कमिंग आउट यानी बाहर आते हुए, सिक्योरिटी चेक वेरिफिकेशंस ऑफ द आइडेंटिटी सुरक्षा कर्मियों द्वारा की गई जांच, वैन WAN यानी इसका मीन्स भी कमज़ोर होना, फैमिलियर एक यानी जो अक्सर बना रहने वाला दर्द है उसको कहते हैं कॉन्टिन्यूअस डल पेन विच सी न्यू वेल। कमला दास अपनी माँ के साथ
कोचीन हवाई अड्डे पर कार से आ रही थी। कमला दास वाज कमिंग इन कोचीन एयरपोर्ट फ्रॉम हर पेरेंट्स होम बाय कार। हर मदर वाज सिटिंग beside her. Kamala Das saw her mother. She was dozing. Her mouth was open. Her face was colorless like a dead body. Seeing it, she became very sad and thought about her old age. She opened window of the car and peeped out. She saw that small trees were running and children were coming out being happy. Security guard stopped her and identified or inquired her luggage. For some distance, standing her mother, I saw her again. It means Kamala Das saw her again. Her face was very weak. It seemed as a winter's moon before the dawn. I realized her familiar ache in which Kamala Das often realized in his childhood. But she said goodbye to her mother with a smile and promised her to visit again. ये बच्चों इसकी एक्सप्लेनेशन था इसका। बच्चों ये कह लें कि इंग्लिश में हाउ टू एक्सप्लेन इन इंग्लिश, इसको कैसे एक्सप्लेन करना है ये मैंने एक्सप्लेन किया है। अब हिंदी में इसको समझ लें। बच्चों कमला दास अपनी पेरेंट्स के घर से यानी पेरेंट्स के घर कोचीन से हवाई अड्डे कार द्वारा आ रही थी। वो लास्ट फ्राइडे था। कमला दास की माँ उनके बगल में बैठी हुई थी। कमला दास ने उन्हें देखा, वो उस समय ऊँघ रही थी, उनका मुंह खुला हुआ था और डेड बॉडी के समान उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था, अर्थात बहुत पीला दिखाई दे रहा था। कमला दास ये देखकर बहुत दुखी हुई और उन्होंने उनकी वृद्धावस्था के बारे में विचार किया, सोचा। जब उन्हें उलझन महसूस हुई तो उन्होंने बाहर कार की खिड़की खोलकर बाहर देखा तो देखा कि बहुत सारे पेड़ दौड़ रहे हैं। चूँकि ये मना स्थिति होती है कि जब हम किसी तेज गति से चलने वाले वाहन पर बैठते हैं तो दूर खड़े हुए जो पेड़ होते हैं वो ऐसा लग रहा है पीछे की ओर भाग रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो कुछ उन्होंने रियलाइज़ किया और उन्होंने लिखा। बच्चे प्रसन्न होकर के अपने घरों से बाहर की ओर आ रहे थे। हवाई अड्डे पर सुरक्षा कर्मियों ने मेरे सामान की जांच पड़ताल की। थोड़ी दूर पर खड़ी मैंने अपनी माँ को फिर से देखा। उनका चेहरा अभी भी पीला और कमज़ोर लग रहा था, जैसे सर्दियों की रात में प्रातःकाल से पहले चंद्रमा का रंग पीला दिखाई देता है, उस प्रकार से उनका चेहरा भी पीला दिखाई दे रहा था। मैंने पुराना परिचित दर्द महसूस किया और बचपन का डर मेरे मन में फिर से आ गया। मैंने मुस्कुराहट के साथ अपनी माँ को अलविदा कहा और उनसे जल्दी ही मिलने का वादा किया। ये इसका एक्सप्लेन है। आप वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग अगर चाहते हैं तो वर्ड मीनिंग के अकॉर्डिंग पढ़ लें। कैसे पढ़ेंगे? ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे। लास्ट फ्राइडे माने पिछले
शुक्रवार को कोचीन से माई पेरेंट्स होम लिखा है, अपने माता पिता के घर से कार द्वारा मैं हवाई अड्डे आ रही थी। मॉर्निंग आई सा माई मदर बिसाइड मी। प्रातःकाल मैं आ रही थी, मैंने देखा मेरी माँ मेरे बगल में बैठी हुई है। डोज ओपन माउथ, वो हल्का सा ऊँग रही थी एंड ओपन माउथ, और उनका मुंह खुला हुआ था। हर फेस ऐसे लाइक दैट, और कॉरप्श, उनका चेहरा जो था वो बहुत पीला पड़ा हुआ था, यानी बहुत कमज़ोर दिखाई दे रहा था। ऐसे ऑफ ए कॉरप्स, जैसे एक लाश यानी डेड बॉडी हो। एंड रियलाइज विद पेन दैट सी वॉज एन ओल्ड एज सी लुक्ड, बट सून मैंने महसूस किया कि शायद ये वृद्धावस्था के कारण हो, क्योंकि वृद्धावस्था एक ऐसी ओल्ड एज ऐसी स्थिति होती है जिसमें तमाम तरह की बीमारियां आ जाती हैं। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द, और मैंने जब खिड़की खोली और बाहर देखा तो छोटे छोटे पेड़ पीछे की ओर दौड़ रहे थे। आगे लिखा हुआ है लुक्ड आउट ए यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग द मेरी चिल्ड्रन स्माइलिंग आउट ऑफ दियर होम्स, और छोटे छोटे बच्चे बड़ी प्रसन्न मुद्रा से घर से बाहर की ओर आ रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूर खड़ी हुई माँ को मैंने देखा। सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे रोका और मेरे सामान को चेक किया, निरीक्षण किया। आई लुक्ड अगेन एट हर वैन पेल, मैंने फिर से उनके पीले चेहरे को, कमज़ोर चेहरे को फिर से मैंने देखा। एज अ लेट विंटर्स मून, यहाँ पर एज ए लेट विंटर्स मून इसलिए आया है क्योंकि सर्दियों के मौसम में, जो जाड़े के मौसम में जो चंद्रमा का सूर्योदय से पहले यानी उषा काल से पहले जो पीला रंग होता है, उसी प्रकार से उसकी माँ का चेहरा पीला पड़ा हुआ था, कमज़ोर था, इसलिए यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एंड लेफ्ट दैट ओल्ड फैमिलियर एक्ट माई चाइल्ड हुड फियर, और मैंने निरंतर चलने वाले शारीरिक दर्द को उनके महसूस किया कि वास्तव में उनको बहुत ही पीड़ा रहती थी, और बचपन का भय मेरे अंदर फिर से आ गया। बट आई सेड वाज सी यू सून अम्मा, लेकिन मैंने उन्हें गुड बाय कहा और मैंने कहा कि मैं शीघ्र ही आपसे मुलाकात करूँगी, ये वादा किया और मुस्कुराते हुए माँ को अलविदा किया। तो ये बच्चों, ये समरी ऑफ द लेसन है। इसमें आपको वर्क क्या करना है बच्चों? सबसे पहले तो एक्सपेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस तैयार करने हैं, सेंट्रल आइडिया तैयार करना है, और सेंट्रल आइडिया के साथ इसमें जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो भी आपको तैयार करने हैं। इसमें मेन थीम क्या दी गई है ये भी आपको तैयार करनी है और कंप्लीट करनी है। सबसे पहले तो आपको लिखने से पहले, पढ़ने से पहले लेसन का नाम और उसके पॉइंट का नाम अक्षर सा याद होना चाहिए, आना चाहिए। अगर ये नहीं तैयार है तो इट मीन्स यू आर केयरलेस अबाउट योर स्टडी, इट इज कंफर्म एंड इट इज सर्टेन। बच्चों, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। इफ यू waste your time unnecessary, you will not get more and more marks. So I give you suggestion that if you work hard, you will get more and more marks. Thank you all of you. बच्चों, an elementary school, it is composed by an eminent poet Stephen Splendor. You know that a word meaning of elementary means beginning, प्रारंभिक, elementary school, प्रारंभिक स्कूल यानी primary school. You know that nowadays in all over India many lakhs of elementary school running, and there are many students and teachers also. You know that government also provided different kinds of project
as midday meal, and government provided also uniform, books and scholarship also. Now it is focused only the real situation of an elementary school in India. Really, the condition of an elementary school is very bad now in all over India. First stanza of the poem: far from gusty waves, these children's faces like rootless weeds, the hair from round their pallor, the tall girl with her weight down head, the paper seeming boy with red eyes, the stunt unlucky hair, are twisted bones, reciting of fathers, nor disease, his lessons from his desk at back of the dim class. One unnoted sweet and young, his eyes live in a dream of squirrels game in tree room. Other than this, सबसे पहले बच्चों वर्ड मीनिंग ध्यान दें। स्टैंडर्ड अनलकी एयर ऑफ ट्विस्टेड बोस मीन्स पैतृक रूप से अपाहिज। इट मीन्स हैंड एंड इनहेरिटेड डिसेबिलिटी। नॉर्ड मीन्स होता है खुरधरा या गाढ़दार। डिम सेमी डार्क यानी धुंधला प्रकाश। अननोटेड जिस पर ध्यान न दिया गया हो। ट्री रूम यानी हॉलो स्पेस जिसे कोटर कहते हैं, कोठरी कहते हैं, इस तरह से। तो आइए यहीं से इसी वर्ड से शुरू करेंगे, ट्री रूम से। ट्री रूम यानी झुग्गी झोपड़ी का स्कूल। झुग्गी झोपड़ी का स्कूल समुद्र या नदी जिसमें हवा के तेज झोंके के साथ लहरें उठती हैं। लिखा है फार फ्रॉम गस्टी वेव्स। गस्टी वेव्स का मतलब यहाँ पर हवा के तेज झोंके, वेव्स लहरें उठती हैं। दीज चिल्ड्रंस फेसेस इन बच्चों के चेहरे पर लाइक रूटलेस वीड्स जो किसके समान दिखाई दे रहे हैं? जड़ विहीन खरपतवार के समान दिखाई दे रहे हैं। द हेयर टर्न राउंड दियर पैलर और वह बाल ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे जड़ विहीन खरपतवार चेहरे पर बिखरी हुई हो। द टॉल गर्ल विद हर रेड डाउन, एक लंबी लड़की भी वहाँ पढ़ती है, वो बीमार है और कमज़ोर दिखाई देती है। द पेपर सीमिंग बॉय, और पेपर यानी बहुत ही दुबला पतला, भूख के कारण बहुत ही कमज़ोर, ठीक है, जिसके शरीर का विकास रुक गया है, यानी वो कुपोषण का शिकार हो गया है। विद रेड साइज, विद रेड साइज यहाँ पे लिखा हुआ है। दुबले पतले शरीर, चूहे जैसी आंखें। द स्टैंडर्ड अनलकी एयर, जो पैतृक रूप से अपाहिज है, अर्थात हैंडीकैप्ड है। ऑफ ट्विस्टेड बोन्स रिसाइटिंग अ फादर, दुर्भाग्य से वो पैतृक रूप से अपाहिज है, वह अपने डेस्क पर बैठा अपना पाठ याद कर रहा है। रिसाइटिंग अ फादर्स नॉल डिसीज, हिज लेसन्स फ्रॉम हिज डेस्क एट बैक ऑफ द डिम क्लास, धुंधली रोशनी में पीछे कच्चे क्लास में बैठा हुआ वो अपना पाठ याद कर रहा है। एक प्यारा सा छोटा लड़का भी है। वन अननोटेड स्वीट एंड यंग, ठीक है, वह सपने में डूबा हुआ है। हिज आइज लिव इन ए ड्रीम, यानी उसकी आंखें ख्वाबों में डूबी हुई, अर्थात सपने में डूबा हुआ है। आप स्क्वेरल्स गेम, ट्री रूम, अदर देन दिस, वह कमरे से बाहर एक पेड़ के कोटर में गिलहरी का खेल देख रहा है। गिलहरियाँ आ रही हैं और पेड़ से उतर रही हैं, फिर चढ़ रही हैं, इस तरह का वो खेल देख रहा है।
उससे पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है। तो अपने जो एलिमेंट्री स्कूल है अपने देश के, एलिमेंट्री स्कूल के बारे में बताया गया है। जो एलिमेंट्री स्कूल है गवर्नमेंट सारी कुछ सब प्रोवाइड करा रही है, मिड डे मील दे रही है, सारा जो है प्रोजेक्ट बना कर दे रही है, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, नो यूटिलाइज फॉर इट, बिकॉज देयर इज नो अटेंशन एंड नो रिजल्ट। कोई इसमें ध्यान नहीं है, उसका कोई परिणाम नहीं। आगे देखिए, ऑन सौर क्रीम वॉल्स, सौर क्रीम वॉल्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी पीली दीवारों के लिए सौर क्रीम वॉल्स यहाँ पर प्रयोग किया गया है। डोनेशन शेक्सपियर्स हैड, स्कूल के जो कमरे हैं उसकी दीवारें पीले रंग की हैं जो बहुत ही रफ दिख रही हैं, भद्दी हैं। शेक्सपियर हैड cloudless at dawn, civilized dome, riding all cities, belt of flowery, Trinidad valley, open-handed map, awarding the world its word, and yet for these children, these windows not thin map their world, where all their futures painted with a fog, a narrow street sealed in with a lead sky, far far from rivers, caps and stars of words। स्कूल के कमरे की दीवारें पीले रंग की हैं, उन पर दानदाताओं की सूची लिखी हुई है और शेक्सपियर का चित्र बना हुआ है। सुबह जब आकाश साफ रहता है, तमाम नगरों में विद्यालयों का साफ सुथरा गुम्बद दिखाई देता है। ऑस्ट्रिया की टाइरोल घाटी में खिले हुए फूलों के बीच इन विद्यालयों के घंटों की आवाज़ सुनाई देती है। दीवार पर संसार का राजनीतिक चित्र भी टंगा हुआ है, जिसमें संसार के बारे में ज्ञान होता है, ज्ञान सिखाया जाता है। फिर भी इन बच्चों के लिए ये उनके संसार का चित्र नहीं है। क्यों? इनका संसार तो उन झुग्गी झोपड़ियों में है, इनका संसार झुग्गी झोपड़ियों में है जो स्कूल की खिड़कियों से दिखाई दे रही हैं। इन बच्चों का भविष्य अंधकार में है। स्लेटी नीले रंग के आकाश ने दूर स्थित नदियों और अंतरीपों में शिक्षित जगत में जाने के तंग रास्ते को अंदर से बंद कर दिया है। क्यों? ऐसे लोग समाज से बहिष्कृत कर दिए गए हैं और इन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए विवश कर दिया गया है। और इनके बच्चे इन्हीं एलिमेंट्री स्कूलों में पढ़ने के लिए मजबूर हैं। Surely Shakespeare is wicked. The map is a bad example, with ships and sun and love, tempting them to steal for lives that slowly turn in their crumpled holes from fog to endless night. On their stag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mantled grass like bottle bits on stones. All of their times and space are foggy slum, so blurred their maps with the slums as big as doom। वर्ड मीनिंग ध्यान से सुने पहले। श्योरली मीन्स निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विक्ड। शेक्सपियर इज विक्ड का मतलब है पोर्ट्रेट ऑफ शेक्सपियर फॉर दीज चिल्ड्रन ऑन द वॉल इज नॉट मीनिंगफुल, यानी दीवार पर टंगी हुई शेक्सपियर की तस्वीर उनके लिए कोई महत्व नहीं रखती, महत्वहीन है। क्या मतलब उनका कि शेक्सपियर कौन है? द मैप अ बैड एग्जाम्पल, यानी कहने का मतलब द मैप ऑफ द वर्ल्ड प्रेजेंट्स देम ए बैड एग्जाम्पल। बच्चों के लिए संसार का जो मानचित्र है वो एक गंदा उदाहरण है। टेम्पटिंग, उकसाने वाला। स्लाइली, गुप्त रूप से। क्रम्पल्ड होल्स, यानी छोटी और तंग झोपड़ियाँ। फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट, शाम के अंधेरे से लेकर बहुत लंबी रात तक की अंत तक। स्लैग मीन्स होता है कूड़ा करकट जो होता है। कीप, ढेर। पीप्ड थ्रो, इसे कमिंग आउट, बाहर की ओर या उभरा हुआ। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मेंडल ग्लास, इसका मीन्स है बच्चों स्टील के फ्रेम में टूटे लेंस से बने चश्मे। बिट्स, टुकड़े। फॉग, कोहरे से भरी हुई। और डूम, नरक जैसे, जिसे हेल बोलते हैं। निश्चित रूप से दीवार पर शेक्सपियर का चित्र इन बच्चों के लिए कोई महत्व नहीं रखता, इम्पोर्टेंस लेस है, यानी
अनइम्पॉर्टेंट है, महत्वहीन है, उनके लिए संसार का मानचित्र उनके लिए बैड एग्जाम्पल है। क्यों? क्योंकि मानचित्र में जो दर्शाए गए, दिखाए गए जहाज, सूर्य और प्रेम, उन चीज़ों को चुराने के लिए लालच देने वाले हैं। इन बच्चों का तो शाम से अंधेरे से लेकर बहुत लंबी रात के बीतने तक इन सक्रिय और छोटी छोटी झोपड़ियों में ही रहना है। इनका यही जीवन है। उन्हें कूड़े के ढेर पर खड़े रहना है। इन बच्चों के शरीर मांसल नहीं है, इनकी हड्डियां दिखाई दे रही हैं, इनकी त्वचा से हड्डियां बाहर झांक रही हैं, इनके चश्मों में स्टील का फ्रेम है पर इनके लेंस नहीं है, केवल चश्मा लगा हुआ है। वे पत्थर पर पड़े कांच के टुकड़ों के समान दिखाई देते हैं। उनका सारा समय स्थान अंधेरी झुग्गी झोपड़ियों में बीतता है। अतः उनके मानचित्रों से उनकी झुग्गी झोपड़ी को मिटा दो जो नरक के समान दिख रही हैं। Unless governor, inspector, visitor, this map becomes their windows, and these windows that shut upon their lives like catacombs break, open till they break the town and show the children to green fields and make their bird run azure on gold sands and let their tongues run naked into looks. The white and green leaves open hasty there whose language is the sun. बच्चों ध्यान से सुनिए वर्ड मीनिंग। गवर्नर, गवर्नमेंट, गवर्नर मीन्स राज्यपाल होता है, लेकिन यहाँ गवर्नर का मीन्स है गवर्नमेंट यानी सरकार। जो झुग्गी झोपड़ी वाले स्कूल खोलती है, इंस्पेक्टर निरीक्षण करने वाले स्टाफ जो इन झुग्गी झोपड़ियों का निरीक्षण करते हैं, विजिटर दर्शक जो बड़े बड़े स्कूलों को देखने आते हैं। कैटाकॉम्ब्स मीन्स होता है एक लंबी भूमिगत गैलरी जिसकी बगल में मकबरे बनाने के लिए खुदाई की जाती है। एजोर मीन्स होता है स्वच्छ आकाश। लेट दियर टंग्स, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों को स्वतंत्र रूप से पुस्तकों का पढ़ने का आनंद दो। लेट दियर टंग्स रन नेक्ड इनटू बुक्स। लीव्स यहाँ पर पन्नों के लिए, पेजेस के लिए प्रयोग किया गया है। लीव्स मीन्स पत्तियाँ होता है, लेकिन यहाँ पर पेजेस के लिए प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है अनलेस गवर्नर, यानी जब तक सरकार झुग्गी झोपड़ी के इन स्कूलों को खोलती है, इंस्पेक्टर, विजिटर, निरीक्षण वर्ग जो स्कूलों का निरीक्षण करते हैं, बड़े लोग जो यदा कदा इन स्कूलों को देखने आते हैं, विजिटर आते हैं, दिस मैप बिकम्स दियर विंडोज। उनका कर्तव्य है कि वे मानचित्र को, वाह्य संसार को देखने की खिड़की बना दें, मेक विंडोज, एंड दीज विंडोज दैट शट अपॉन दियर लाइव्स, और ऐसी खिड़की जो भूमिगत कब्रिस्तान के समान उनकी झुग्गी झोपड़ी को बंद करा दे, उन्हें नष्ट करा दे। ब्रेक अपॉन टिल दे ब्रेक द टाउन, जिस स्थान पर वो बनाई गई है उसको तोड़ दे, ब्रेक कर दे, उस संसार में वे भी अपना स्थान बना पाए, ऐसी कोशिश करें। एंड सो द चिल्ड्रन टू ग्रीन फील्ड, और उन बच्चों को हरे पन्नों से बने इतिहास को उनके सामने खोल कर रख दें। कहने का तात्पर्य है कि उनको प्रकृति के करीब ले जाएं। रन एजोर ऑन गोल्ड सैंड्स, और इस स्वच्छ आकाश के नीचे, ताकि वे अपना अच्छा स्थान बना सकें। रन नेक्ड इनटू बुक्स, और उन्हें ऐसा बना दें कि वो स्वतंत्र रूप से अपनी भाषा को पुस्तकों के द्वारा पढ़ सकें। वाइट एंड ग्रीन लीव्स ओपन, और वे अपनी पुस्तकों के पृष्ठ खोल करके उन्हें पढ़ सकें। हिस्ट्री दियर हुज लैंग्वेज इज़ द सन, और वे अपने विचार प्रकट कर सकें उन पुस्तकों के द्वारा पढ़ करके। कहने का तात्पर्य यह है, इस थीम ऑफ द पोएम, it is necessary to know about the authority of government, that everyone should be able to study carefully
in natural surrounding without any kind of foundation, free situation, free education, and there are a lot of chances given to those inhabitant children in the जुग्गीज। बच्चों, ये आपको अक्षर सा पढ़ना है और इसका सेंट्रल आइडिया, साथ ही इसमें एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी कंप्लीट करने हैं और इसमें जो ऑप्शनल क्वेश्चंस दिए गए हैं, ये पीछे जो दिए गए हैं इसमें, ये भी आपको कंप्लीट करके, ठीक है, भेजने हैं। ओके, थैंक यू।